Hello students, welcome to this live session of 10 plus 2 biology. You are interacting with Parminder Tangdi, lecturer biology from Shaheed Jagsir Singh Government Senior Secondary Smart School Boha, District Mansa. बेटा सैशन ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਆਲਦੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜੋ 70 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਲਈ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਇਹ 18 ਮਾਰਕਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 14 ਮਾਰਕਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4 10 ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 14 ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ 2 ਹੈ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 17 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟ A B C and D। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ A ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 28 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 3 ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਨੰਬਰ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਥੀਸ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ 5-5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ, ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੂਡ ਚੇਨ ਫੂਡ ਵੈਬ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
इस तो इलावा अपने को जिहड़ी यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 दे विचों 2 क्वेश्चन अपने को इस तरह के आ रहे हैं जिहड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस भी हो सकते हैं, जां जिस तरह दस्सिया कि ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, जां फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो नाल बेटा इस दे विचों एक क्वेश्चन साडे कोले 5 नंबर का आना है, जिहड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 दे विचों आ रहा है, उसका चॉइस क्वेश्चन सानूं चैप्टर नंबर 3 दे विचों भी मिल रहा है। तो नाल चैप्टर नंबर 3 दे विचों सानूं एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो ओवरऑल जे देखा जाए असी चैप्टर नंबर 2 ते 3 का जे कंपैरिजन करिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन साडे कोले चैप्टर नंबर 2 ते 3 दे विचों आ रहा है, तो असी बेटा इन्हां दोनों दे विचों किसी एक चैप्टर नूं वधिया तरीके नाल तैयार करांगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी गल दस चुके हैं कि साडे कोले डायग्रामैटिक क्वेश्चनस भी आने हैं, तो डायग्रामैटिक क्वेश्चनस दोनों चैप्टर्स दे विच बनदे है। बट जे असी चैप्टर नंबर 3 नूं वधिया तरीके नाल तैयार कर लीए तो 5 नंबर के क्वेश्चन साडे कोले इत्थों आ जाणगे, 2 नंबर का इत्थों आ जाएगा, 1 नंबर का इत्थों आ जाएगा, तो असी यही 3rd चैप्टर जिहड़ा हैगा बेटा घट्टो घट्ट साडे कोले 8 मार्क्स का बन सकता है। हुण तुसीं देखो कि 70 मार्क्स का साडा टोटल पेपर है, उस दे विचों 3rd चैप्टर 8 मार्क्स का, मतलब कि मोर दैन 10% इस दे कोले हैगा स्कोर। इस करके असी कंसनट्रेट इन्हां चैप्टर्स के उत्ते करांगे। साडे इस सैशन का परपज़ ही बेटा यह है कि असी हुण ये श्योर हो जाइए कि किहड़े-किहड़े चैप्टर्स नूं कंसनट्रेशन नाल करन दी जरूरत है, किन्हां दे उत्ते ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो उन्हां चों किस किस तरह के असीं क्वेश्चनस करने हैं। मैं नाल तुहानूं क्वेश्चनस भी डिस्कस करवाऊँगा। तो हुण जे असीं चैप्टर 4 की गल करिए, रिप्रोडक्टिव हैल्थ की गल करिए, इस दे विचों 1 नंबर का काम है, तो जिहड़ा बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो 2 नंबर का क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 और 1, 2 क्वेश्चन आउणगे एंड वी हैव टू अटैम्प्ट 1 आउट ऑफ 2। सो ये बेटा अपने को पूरा जिहड़ा ये यूनिट का जिहड़ा असीं देखा जाए तो इसका ब्लू प्रिंट है। इस दे विचों सब तो पहला मैं चैप्टर नंबर 1 के उत्ते कंसनट्रेट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 साडा 1 नंबर का है बेटा, तो वो साडे कोले की आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है। सो इस मूवमेंट के उत्ते जरूरत ये होंदी है कि असी चैप्टर नूं थॉरोली तो पढ़िया होया, तो हुण सानूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिहड़े हैगे है अलग अलग सोर्सिस तो सानूं मिल रहे हैं, ऑल्दो अचे दी उड़ान शीट्स भी मिल रही ने, एजुकेयर ऐप के उत्ते मटीरियल मिल रहा है, तो इस तरह के मटीरियल नूं स्टडी करने की जरूरत है। इत्थे बेटा मैं एक डायग्राम सिर्फ इस करके लगाई है क्योंकि असी इस चैप्टर नूं करन लगे कई बार इन्हां चीज़ों नूं इग्नोर कर जाते हैं। जिवें अपने कोले बेटा स्क्रीन के उत्ते ये डायग्राम दी हुई है तो नीचे वैजीटेटिव प्रोपेग्यूल दिते हुए है, तो हुण जिहड़े वैजीटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैगे है, जिवें जिंजर की असी गल करिए तो हुण जिंजर बेटा जिहड़ा हैगा इसका वैजीटेटिव प्रोपेग्यूल साडे तो पूछा जा सकता है। इसका वैजीटेटिव प्रोपेग्यूल की है बेटा, किस तरह वैजीटेटिव प्रोपेगेशन होंदी है, राइजोम दे नाल होंदी है। मतलब ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होणगे, सानू ध्यान हुण थॉरली पढ़न की थां ते असीं इह चों 2-2 नंबर के क्वेश्चन याद करी जाइए, वो नहीं करना, क्योंकि इह चों इक्को ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउणा है। जे मैं हुण दूसरे चैप्टर के उत्ते कंसनट्रेट करां, इस दे विचों 2 क्वेश्चन बेटा साडे कोल इस तरह के हैगे है जिहड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने। एक 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका चॉइस क्वेश्चन किहदे चों आ रहा है, वो 3rd चैप्टर चों आएगा। सो जे असीं 5 नंबर वाला 3rd दे विचों करांगे जाके, तो ओवरऑल इस चैप्टर के विचों आपां नूं करन नूं तां सिर्फ 2 MCQ बच जांदे है। इस करके बेटा इस चैप्टर के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस मैक्सीमम सानूं करने चाहिए है। जिस तरह बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह के ने, डिवेलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, जां बेटा पॉलीनेशन दी अलग अलग एजेंसीज की ने। इस मूवमेंट के उत्ते इन्हां वड्डे क्वेश्चनस नूं क्रैम करन दी बजाए, इन्हां दे उत्ते टाइम वेस्ट करन दी बजाए सानू ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, क्योंकि असीं क्वेश्चन याद करके करांगे भी कि सानू मिलता है इस दे विचों बेटा 2 MCQ रहे है। 5 नंबर का क्वेश्चन असीं दूसरे चैप्टर के विचों भी कर सकते, तीसरे चैप्टर चों कर सकते हैं। सो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वास्ते असीं इस टाइम नूं उन्ना की टाइम देवांगे जिन्ने इस दे विचों नंबर आने हैं। जिस तरह बेटा मैं डायग्रामैटिक क्वेश्चन की गल की है कि 5 नंबर का डायग्रामैटिक क्वेश्चन आना है, तो हुण असीं घट्टो घट्ट डायग्रामैटिक क्वेश्चन तो करांगे वो किस तरीके नाल आ सकते हैं। जिवें साडे कोल स्क्रीन ते एक डायग्राम दिता होया है, इस दे विच क्वेश्चनस पूछे है, वट डज द डायग्राम डिपिक्ट एंड यू हैव टू लेबल A to D एंड दैन जे इस दे नाल दे होर तरह के अव्यूल्स हैगे, यू हैव टू ड्रॉ दोज अव्यूल्स। तो बेटा अपने कोल जिवें देखो हुण ये सब तो पहला तो एक टिपिकल जिहड़ा एनाट्रोपस अव्यूल है उस अव्यूल का डायग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इस करके क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन के उत्ते दिता है, क्योंकि हुंदा कि अक्सर साडे कोल क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी असीं डिवीजन नूं नहीं समझते। जिवें 1 नंबर का यह हो सकता लेबलिंग 4 की है तो 4 नंबर की नाल लेबलिंग होवे, तो असीं हुण जदों इसका आंसर देना है तो आपां नूं लिखण की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। असीं लिखदा है कि A B
C ਤੇ D। ठीक है बेटा, जिस तरह इत्थे B दिखाया होया है, B इस डायग्राम दे विच माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर ओपनिंग हैगी है। इसे तरीके नाल ही D जिहड़ा हैगा बेटा वो अपने कोले चैलेंज लैंड आ गया, जां इस दी इंटैगूमेंट्स आ गईयां, A जिहड़ा हैगा इसदा फ्यूनिकल आ गया। सो असीं सिर्फ ਉਹੀ पोर्शन इत्थे लिख देना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं हुंदी। ये मैं तुहानूं सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन दिता है, बिल्कुल इस तरीके नाल ही जिवें आपां याद की करते हैं अक्सर, जिथे मैं तुहानूं लैके आउणा चाह रहा हैं कि असीं अक्सर याद करते हैं कि साडे कोले किहड़े-किहड़े प्लांट्स ने, किहड़ी-किहड़ी टाइप्स की पॉलीनेशन हैगी है। असीं उन्हां डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनेशनस नूं डायरैक्टली याद करन दी बजाय थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल होईए, जिस तरह डायग्राम दिता होया है। तो इस डायग्राम दे विच साडे कोल एजेंट ऑफ पॉलीनेशन पूछा होया है, तो बेटा फ्लावर स्ट्रक्चर तो क्लीयर हो रहा है कि इहदे विच विंड जिहड़ी हैगी है दैट इज़ द मोड ऑफ पॉलीनेशन और दैट इज़ द एजेंट ऑफ पॉलीनेशन। एंड दैन असीं इस तरह के जिहड़े फ्लावर्स ने उन्हां दे करैक्टर्स डिस्कस करने हैं। दैन थर्ड चैप्टर की गल करिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। सो इस तरह के चैप्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ डायग्राम्स हैगियां, ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्पर्म की डायग्राम है, दैन ओवरी की डायग्राम है, तो इन्हां डायग्राम्स के उत्ते कंसनट्रेट करना है। जिवें सैमनीफेरस ट्यूब्यूल की डायग्राम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वी हैव टू लेबल A to D। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बेटा ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ, ਸਪਰਮੀਓਜੈਨਸਿਸ ਜਾਂ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। दैन मैं सैकंड यूनिट की गल की है। मैं पहले ही तुहानूं दसदा कि सैकंड यूनिट जिहड़ा साडे कोले जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का है, ये यूनिट बेटा साडा 18 मार्क्स का यूनिट है। तो इन्हां 18 मार्क्स के विचों सिर्फ चैप्टर नंबर 5 की जे असीं गल करते हैं, ये 'चों 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन जिहड़े एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। तो बेटा हुण जिहड़ा अपने कोले क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है, देखो इहदा चॉइस क्वेश्चन भी सानूं इसे चैप्टर के विच ही मिल रहा है। जदों सानूं सेम चैप्टर के विचों चॉइस क्वेश्चन मिल रहा है, इट मीनस असीं इस दे विचों जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस हैगे है उन्हां सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं करांगे, क्योंकि जे असीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस कर लए तो इहदे विचों एटलीस्ट 2 दे विचों एक क्वेश्चन तो साडे कीते होए दे विचों आउणा ही आउणा है ना। तो वो किहड़े-किहड़े क्वेश्चनस ने, मैं स्क्रीन पर कुछ की तुहानूं क्वेश्चनस दिते हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि तुहाडा 2 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन दे उत्ते दिते होए इन्हां टॉपिक्स दे विचों डेफिनेटली आएगा। तुसीं कहोगे कि सर इन्ने यकीन नाल किवें? यकीन नाल इस करके क्योंकि 2 नंबर का जिहड़ा क्वेश्चन हैगा बेटा वो चॉइस क्वेश्चन है। इस दे विच ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੀ 10 ਨੇ, 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ 1। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਪਲੀਓਟ੍ਰੋਪੀ ਹੈ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਫਿਲਿਕ ਮੇਲ ਹੈ एंड ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मैरिज आ फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया, एंड वी हैव टू प्रोडिक्ट द टाइप ऑफ प्रोजनी फाउंड विद द हैल्प ऑफ पनेट स्केयर। तो उस तरह के ਜਿਹੜੇ चार्ट्स बना के असी प्रोडिक्शन करनी ਹੁੰਦੀ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चनस ही ਹੁੰਦੇ ਆ बेटा ਜਿਹੜੇ 2-2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बनते हैं। जे तुसी गल करो कि मैंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया जाए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो वह 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बनते, वो 3 या 5 नंबर के क्वेश्चनस बन जाते हैं। इस करके इंटैलीजेंटली सानू इस चैप्टर के विचों सिर्फ उन्हां ते कंसनट्रेट करना चाहिए जिहड़े क्वेश्चन 2 नंबर के विच आ सकते हैं। दैन अपने कोले बेटा 6 चैप्टर है। इस चैप्टर के कोले बहुत ज़्यादा स्कोर है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस दे विच एक बेटा साडे कोले 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के 1 नंबर के 2-2 क्वेश्चन हैगे है, दैन 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, दैन 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का स्कोर बेटा इस चैप्टर को है। 70 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब 10% का सिर्फ एक चैप्टर को है। सो इस तरह के चैप्टर्स के उत्ते करना है। साडे कोले चाहिए चैप्टर्स जिहड़े हैगे बेटा 16 चैप्टर्स ने, बट इन्हां 16 चैप्टर्स दे विचों हार्डली तुहाडे कोले 7 के 8 चैप्टर्स मिलणगे, जिन्हां 7-8 चैप्टर्स दे विचों साडे कोले 50 मार्क्स का पेपर आ जाना है। सो असी इन्हां चैप्टर्स के उत्ते कंसनट्रेट करिए। जिवें अपने कोले बेटा इत्थे हर्शी एंड चीज़ एक्सपैरीमेंट है, मैडलसन स्टेहल एक्सपैरीमेंट है। ये एक्सपैरीमेंट 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़े वधिया सीधे क्वेश्चनस बनते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड 3 नंबर के लिए बनता है। वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये बनता है। बट जे असी गल करिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन जिवें इस चैप्टर के विचों अक्सर आउंदे सी, तुसीं जिन्ने भी हैल्प बुक्स कोई एक्सप्लोर करते हो, ज़्यादातर हैल्प बुक्स के तुहाडे कोले किस तरह के क्वेश्चनस मिलते हैं कि रैप्लीकेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करो,
ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म की है ਜਾਂ ट्रांसक्रिप्शन का की मैकेनिज्म है। हुण बेटा क्वेश्चन तो साडे कोले 2 नंबर का ਜਾਂ 3 नंबर का आना है। हाउ इज़ इट पॉसीबल कि 2 ਜਾਂ 3 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे ਦਾ पूरा ट्रांसक्रिप्शन का ਜਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ बेटा। ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਡ ਆਫ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਹੈ, लैक ऑपरन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ 7th ਚੈਪਟਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ 6 ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 10% ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਰਡਲੀ 10 ਮਿਲਣਗੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹਾਰਡੀ-ਵੇਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਰਵਿਨਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਮਾਰਕਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਮਾਰਕਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਡਾਰਵਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਹਾਰਡੀ-ਵੇਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ, ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ that is choice question, मतलब कि एक 8वें चैप्टर चो पूछा जाना तो उसका choice question जिहड़ा हैगा this is from 9th chapter। then हुण जे 9th चैप्टर नूं ध्यान नाल देखीए इहदे कोले सिर्फ 2 MCQs ने। जिहड़ा इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, असीं 3 नंबर का क्वेश्चन इत्थों करन दी बजाए जे 3 नंबर का क्वेश्चन असीं 8th चैप्टर दे विचों ही कर लईए तो उस दे नाल साडा जिहड़ा 8th चैप्टर है वो 8 नंबर का बन जाएगा। अगेन मोर दैन 10% थोड़ी क्वेश्चन चैप्टर बन गए ना ये। तो हुण 9th चैप्टर 2 नंबर का रह गया, इस करके असीं 9th चैप्टर नूं थॉरली स्टडी नहीं करांगे, ये ते बहुता ज़्यादा टाइम नहीं लगावांगे। असीं 8th चैप्टर दे उत्ते कंसनट्रेट करांगे। मैं तुहानूं 8th चैप्टर के सिलेबस वाल लैके आउणा है। 8th चैप्टर दे विच साडे कोल कुछ डिजीज़ ने, मलेरिया है, फाइलैरिसिस है, अस्कैरिसिस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, अमीबेसिस, डेंगू, चिकनगुनिया एंड रिंगवर्म। तो हुण असीं करना की है, इन्हां दे विचों क्वेश्चन किस तरह दा आउंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा कोई भी ਜਿਹੜਾ डिजीज़ है उस डिजीज़ का कॉजिंग एजेंट पूछा जाता एक तो कि कॉजिंग एजेंट की है उसका, उस डिजीज़ के सिम्पटम्स की ने, सिम्पटम्स तो बाद दे विच बेटा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की है। सो असी कंसनट्रेशन इन्हां दे उत्ते करना है। असी ये नहीं है कि पूरा जिहड़ा मलेरिया का असी साइकिल स्टडी कर रहे हैं उसका सानू कोई बहुता ज़्यादा फायदा नहीं है। असी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक सीधा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन बन जाता जिहदे विच असीं स्कोर भी ज़्यादा कर सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके नाल बनते हैं। इस पूरे चैप्टर नूं तुसीं बेटा ध्यान नाल देखोगे ना 8th चैप्टर नूं, इहदा सिलेबस 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड होऊगा। एक दे विच डिजीज़ दित्तियां होणगीਆਂ ते दूसरे पार्ट दे विच साडे कोले ड्रग्स दा जिहड़ा पार्ट बनिया होया है। मैं स्टार्टिंग दे विच ये गल कही सी कि एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आउणा है। इस चैप्टर च हैगे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ते सैल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का डिफरेंस इस चैप्टर दे विच है। दैन बेटा इस दे विच एक्टिव इम्यूनिटी ते पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस भी इस चैप्टर दे विच है। सो इस तरीके नाल ये चैप्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा वधिया तरीके नाल करने वाला है। असीं इस तरह के जिहड़े सिलेक्टेड चैप्टर मैं तुहानूं दस रहे हैं, पहला मैं तुहानूं बेटा 3rd चैप्टर की गल कीती है, फिर मैं तुहानूं 5th चैप्टर की गल कीती है, हुण मैं 8th चैप्टर की गल कर रहे हैं। दैन 9th चैप्टर हैगा अपने कोले, 9th चैप्टर तो बाद 10th चैप्टर जिहड़ा हैगा बेटा इस दे विच अपने कोले 2 नंबर का एक क्वेश्चन आउणा है ते थोड़े क्वेश्चनस बनते हैं जिमें बेकर्स जीस्ट की है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, स्पैलिंग सही लिख के आए हो।
स्विस चीज़ या रॉकफोर्ड चीज़ की है, वट आर मिथेनोजन्स, गिव एन एग्जाम्पल, और वट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਤੇ 5 ਦਾ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂਨਿਟ 4 ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, 2 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12। ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਚੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਇਹ DNA ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Then what is palindromic nucleotide sequence? This is very important question. Palindromic nucleotide sequence, ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਲਿਆਲਮ ਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ YALAM। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੈਸਿਸ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ PCR ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟੇਬਲ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੈਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੈਸਿਸ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ, DNA ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੈਸਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਐਨੋਡ। ਵਾਈ DNA ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਐਨੋਡ? बिकॉज DNA इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दैट्स वाई किधर जाएगा, पॉजिटिव फील्ड वाली जाएगा। सो यही इसका प्रिंसीपल है। इसे करके बेटा मैं तुहानूं कहना है कि थोड़ा जिहा डिटेल स्टडी करिओ चैप्टर नूं, जिहड़ा हैगा 11th चैप्टर नूं तुसीं किन्नी भी कोशिश कर लो, इन्हां चैप्टर्स नूं तुसीं क्रैम नहीं कर सकदे। तुहानूं समझना पऊगा, समझण तो बाद च तुसीं बेटा इन्हां चैप्टर्स नूं कर सकदे हो। हुण मैं चैप्टर नंबर 12 वाल आ रहा बेटा, चैप्टर नंबर 12, दिस इज चैप्टर नंबर 12 नॉट 11। सो चैप्टर नंबर 12 का जिहड़ा अपने कोले है, इस दे विचों एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा मैं इत्थे और 1 पाया होया है, मीनस कि इस दी जिहड़ी चॉइस हैगी है बेटा चॉइस 11th चैप्टर दे विच रह गई। सो मैं तो ये मनूंगा कि इस चैप्टर नूं असीं 1 + 2 3 मार्क्स से ही मान रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन असीं उधरों कर सकते हैं। हुण 2-2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू तो किहड़े-किहड़े क्वेश्चनस बनते हैं, जिवें BT कॉटन है,
BT ਕਾਟਨ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैसिलस थोरेंजेंसिस का जिहड़ा क्वेश्चन हैगा बेटा, ਜਾਂ क्राई प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू तो CRY प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू तो पूछा जाता है। बायोटैक्नोलॉजिस्ट ने किस तरह इस टैक्नीक ਨੂੰ यूज़ किया। दैन ह्यूमन इंसुलिन ਨੂੰ रिकम्बीनेंट DNA टैक्नीक तो पहला किस तरीके ਨਾਲ प्रिपेयर किया जाता सी। दैन जीन थैरेपी है। दैन देर आर फ्यू एथिकल इशूज़ लाइक बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। सो इन्हां दे विचों बेटा मैं गल करां तां जिवें बायो पेटेंट है, बायो पायरेसी है, जां BT काटन हैगा, ह्यूमन इंसुलिन है, जीन थैरेपी है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चनस ने जिहड़े 2-2 नंबर के बनते हैं। सो इस करके बेटा आपां नूं जिन्ने क्वेश्चन मैं तुहानूं दस रहे हैं नाल नाल ब्लू प्रिंट डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट इन्हां क्वेश्चनस नूं तुसीं ध्यान नाल करिओ। ये ना होवे कि असीं बेटा चैप्टर दे विचों पहले ही अपना जिहड़ा हैगा ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंगली असीं ये सोच लिया कि असीं तां ये 11th चैप्टर के विचों करांगे ते 11th चैप्टर के विचों असीं क्वेश्चन वो कर भी ले, साडे कीते हुए क्वेश्चन के विचों आ भी गया, बट इवन दैन असीं 2 दे विचों 2 नंबर नहीं लै सके। क्यों? क्योंकि असीं क्वेश्चन जिहड़ा पुछण वाला सी उसकी सेंस नूं नहीं समझिया, असीं क्वेश्चन नूं प्रॉपरली पढ़िया ही नहीं है। सानूं ये लग्या कि क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ह्यूमन इंसुलिन के उत्ते आ गया, असीं उसका डायग्राम ड्रॉ करता। इट मे बी पॉसीबल कि उसनूं उसने पार्ट्स दे विच पुछया होवे। सो दैट्स वाई बेटा तुहानूं क्वेश्चन पेपर नूं बड़े ध्यान नाल समझण दी जरूरत है। नाउ कमिंग टू लास्ट यूनिट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये यूनिट बेटा अपने कोले जिहड़ा हैगा 14 मार्क्स का यूनिट है। इस दे विच 4 चैप्टर्स ने 13, 14, 15 एंड 16। बट जो तुसीं ध्यान नाल देखोगे चारे चैप्टर्स जिहड़े हैगे आ, सानूं सारे चैप्टर्स नूं डिटेल दे विच जाण दी जरूरत नहीं है। सब तो पहलां तां मैं चैप्टर नंबर 13 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ क्वेश्चन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मे बी ट्रू फॉल्स, मे बी फिल इन दी ब्लैंक्स। दैन ਜਿਹੜਾ 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इस 2 नंबर के क्वेश्चन का ਜਿਹੜਾ चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। हुण चैप्टर नंबर 15 ਜਿਹੜਾ हैगा इस दे विच अपने कोले 2 MCQ आ रहे हैं। मतलब कि जे असीं 2 नंबर का क्वेश्चन इत्थों कर लीए, 2 MCQ इत्थों कर लीए, तो इस चैप्टर नूं असीं 4 नंबर का बना सकते हैं। ब्लू प्रिंट च इहदी 2 का दिता, बट असीं इसनूं 4 का बना सकते हैं। तो जे असीं इधर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करिए तो साडे कोल चैप्टर जिहड़ा हैगा 1 नंबर का ही रह जाना है। मैं तुहानूं ये गल इस करके दस रहे हैं कि असीं चैप्टर नंबर 13 की बजाय जिहड़ा कि बहुत डिटेल दे विच भी है, लेंथी चैप्टर भी है, असीं 15 के उत्ते ज़्यादा वधिया तरीके नाल कंसनट्रेट करिए, उस दे विचों क्वेश्चनस करिए, क्योंकि उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस भी 2 मिलणगे। बड़ा छोटा चैप्टर हैगा, इस दे विच साडे कोल सिर्फ बायोडाइवर्सिटी दे लॉस किस तरीके नाल हुंदा है, बायोडाइवर्सिटी नूं कंजर्व किस तरह कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चनस ने। चैप्टर नंबर 14 की जे मैं गल करां, चैप्टर नंबर 14 दे विचों 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बेटा इत्थे एक क्वेश्चन जिहड़ा 5 नंबर का आ रहा है, एंड इसका जिहड़ा चॉइस क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। सो असीं चैप्टर नंबर 14 ते चैप्टर नंबर 16 दे विचों एक दे विचों कर सकते हैं। जे असीं चैप्टर नंबर 14 दे विचों ये क्वेश्चन कर लिया तो एनवायरमेंटल इशूज़ वाला चैप्टर साडा सिर्फ 2 नंबर का रह जाना, उस सिर्फ 2 MCQ रह जाएंगे। इस करके बेटा असीं चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 इन्हां दोनों चैप्टर्स नूं बहुत ध्यान दे नाल करांगे ते बाकी चैप्टर्स दे विचों असीं बेटा जिन्ने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सानूं करन नूं मिल रही है वो करांगे। हुण 14 ते 16 दे विचों एक गल ध्यान नाल देखिओ, समझिओ कि साडे कोले एक क्वेश्चन डायग्रामैटिक क्वेश्चन आउणा है, तो तुसीं बेटा 14वें ते 16वें दे जदों डायग्रामैटिक क्वेश्चनस नूं ध्यान नाल देखोगे ना, तो तुहाडे कोले हार्डली इस दे विचों 7 जां 8 डायग्राम्स बनणगीਆਂ ते उन्हां 7 जां 8 डायग्राम्स दे विचों एक डायग्राम आउणी श्योर है, क्योंकि ब्लू प्रिंट दे विच दिता होया। इस करके बेटा असीं इन्हां डायग्राम्स नूं ध्यान नाल करिए। तुसीं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 14 ते चैप्टर नंबर 16 इन्हां चारों चैप्टर्स दीयां जदों डायग्राम्स करोगे तो तुहाडे कोले बेटा 12 तो 14 डायग्राम्स आउणगीਆਂ ते इन्हां 12 तो 14 डायग्राम्स दे विचों कितना स्कोर होना तुहाडा 10 मार्क्स। तो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन चो नंबर घटते नहीं होंगे, 10 चो 10 मिलणगे तुहानूं। सो बायोलॉजी का पेपर हुण स्कोरिंग हुंदा है, इस तरीके नाल नहीं है बेटा अपने कोले 10 नंबर तुहानूं मिल सकते हैं। सो आपां ध्यान दे नाल इन्हां डायग्राम्स नूं करना है। तो बाकी जिहड़े भी चैप्टर्स तुहानूं मैं दिते है बेटा, चैप्टर नंबर 14 दिता होया है, जिहदे विच साडे कोल इकोलॉजिकल सर्विसिज ने, कार्बन साइकिल है, पॉलीनेशन है, ऑक्सीजन रिलीज़ है, जां चैप्टर नंबर 16 दिता होया है, जिहदे विच बेटा अपने कोले जिस तरह डायग्राम सब तो पहला कैटालिटिक कन्वर्टर की डायग्राम अपने कोले आ जाती है, इस तो बाद बायो मैगनीफिकेशन की डायग्राम है। इन्हां डायग्राम्स से उसे ध्यान नाल कंसनट्रेट करना है।
आई होप कि बेटा जो मैं तुहानूं अज दा ब्लूप्रिंट डिस्कस कीता है, जिन्ना भी स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जां पैटर्न असीं डिस्कस कीता है, वो पैटर्न तुहानूं समझ लग्या होएगा। जे बेटा तुसीं इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे, आई एम श्योर कि तुसीं बहुत वधिया स्कोर करोगे। सिर्फ एक पढ़न दे नाल नंबर नहीं आउंदे, उस तैयारी नूं असीं किस तरीके नाल बेटा मैनेज करते हैं, वो साडे नंबर लैण दे विच बहुत ज़्यादा हैल्पफुल हुंदा है। सो अज दा लैक्चर बेटा असीं इत्थे ही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।